persons have left the hall, and this shows how seriously we take this aspect in our day-to-day life or day-to-day practice. Now, one thing I can say that is, okay, the entire conference may be good for your practice, but this is the session which is good for you, for your own health. So please be attentive. Medical nutrition therapy, as we call it means that we are using diet as a medicine. So diet, it is effective if we prescribe it judiciously. It reduces HbA1c. See, 1 to 2% reduction in HbA1c with dietary restriction if it is advocated thoroughly. And most of our oral agents, they have got a capacity of lowering HbA1c by 1 to 1.5% only. So it's really effective. It reduces LDL by 50 to 55%. What does it mean? It's equivalent to almost 10 milligram of metabolized. It reduces blood pressure. So it offers metabolic control, and with this we should know now that what diet we need to advise to our patients. So first and foremost, the starting point by area which is given is to focus on weight loss strategies. We know that in type 2 diabetes, weight is the most important thing. Even for a person who appears to be normal weight person, but we know that we Asians, we Indians, we carry more amount of fat in our body. So being a normal weight individual, we still carry a lot of fat in our body and we need to reduce that. So treatment of diabetes or diet in diabetes, it focuses around reducing weight or reducing fat. And this is again, it reduces insulin resistance and it reduces blood pressure, lipids and glycemic. How do we apply this thing in our clinical practice? Now, this is the point which we need to discuss. So, I will take you from a classroom to kitchen, right? And this is the art of medicine, art of this crisis and modification. First of all, whenever a person is entering to our chamber, what we need to know is his height and weight. That's all. That's all is enough to prescribe him a good delicious diet. Measure height in centimeter, reduce 100. This may carry a lot of fallacies in it, but this is the simplest measure. So, a 176 centimeter old tall man, reduce 100, that comes out to be 76. That is the maximum weight for that person. And 10% less than that is the ideal weight. So 76 minus 7.6 makes 68.4. This is how very easily at a glance we can. They are unique and they are very specific to diabetes. So common infection in diabetes are, the most common is urinary tract infection. It is either lower or the upper urinary tract infection, then respiratory tract infection, and the infection associated with the skin and the soft tissues. And what are the infections which are exclusively associated with the diabetes? So those are like melanocytic externa, rhinoampular cellular mucormycosis, emphysematous infection, whether it is pyelonephritis or cholecystitis. And why these diabetic patients are more prone for the infection? This we know very well. The several aspects of the immunities are impaired in diabetes. They have an impaired neutrophil function, and it is more common in the patients who are having acidosis. Either they are having the diabetic ketoacidosis or the lactic acidosis because of the septicemia. They have impaired cell-mediated immunity and the impaired microcirculation which favor the growth of the anaerobic bacteria. And once we improve the glycemia, this immune function gets improved. And it is well known in the studies, as the blood sugar goes up, the chances of infection goes higher, and there is an increase. Because of this, there is increased mortality, and it is also known that as the blood sugar goes higher, the mortality is increased by many fold. And it is also demonstrated that when you bring down the blood sugar nicely to some extent, like 120 to 160 milligram, they have a decreased morbidity and mortality, and this is also because of decrease in the infection.
one by one. First of all, organizing chairperson of this conference, Dr. G.P. Rai. Another star of the conference, organizing secretary and my friend Dr. Varesh Nagar. President UPRSSTI, Professor K.K. Tripathi. Our special invitee today, CMO Kushinagar, Dr. S.K. Pandey. I would ask Dr. Varesh Nagar, please present a bouquet to Dr. S.K. Pandey. I request Professor
on the dais, dear colleagues and friends. It gives me great pleasure to welcome you in the city of Lord Buddha, Kushinagar, in third annual meeting of RSDI UP chapter. In ancient time, the modern city of Kushinagar was known as Kusaudi in pre-Buddha period, while in Buddha period it was called as Kusinara. The city was named Kushinagar after the death of Lord Buddha at this place near the Girnauti river in 483 BC. Gautam Buddha lived of a species of the mushroom. So you are in a very ancient town of rich heritage. It was the last year when our organizing secretary, Dr. Paresh Nagar, took up this challenge of organizing a state level conference here. I, on behalf of organizing committee, acknowledge the difficulties you must have faced in traveling to this place. So I would like to thank you from the core of my heart to all the delegates and faculty members who took all the pain to come here and have really made this event a great success. I must say that all members of organizing committee and particularly Dr. Paresh Nagar have worked very enthusiastically throughout the year so that each one of you can enjoy the scientific program as well as cultural evening. बहुत खुशी है कि ये सपने जैसा था कि कुशीनगर जैसी जगह पे हम लोग इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं। आज से 3 साल पहले बड़ी मेहनत करके हम लोगों ने यूपी में RSSDI का चैप्टर बनाया और जो चैप्टर बनाया उसके पीछे भी बड़ी लंबी कहानी थी। बड़ी कई बार कई लोगों ने अप्लाई किया, कई बार मिला नहीं मिला, फाइनली हम लोगों को मिल गया। जब मिल गया तो हमने सोचा कि अब कुछ ऐसा कंस्ट्रक्टिव काम किया जाए। 3 साल में हम लोगों ने बहुत सारे काम किए, 3 बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस कराई, आज की कॉन्फ्रेंस को मिला करके कई CMEs पूरे यूपी पर में की। अब हम लोग एक रिसर्च फाउंडेशन भी शुरू करने जा रहे हैं, 2 रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए रिसर्च फंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3 साल में हम लोगों ने जितना अचीवमेंट किया वो हमारी उम्मीदों से कहीं बहुत ज़्यादा। और सच पूछा जाए तो डॉक्टर ब्रिजमोहन ने जब हम लोगों को डॉक्टर परेश नागर का नाम सजेस्ट किया तो कहीं ना कहीं दिमाग में एक शंका थी कि ये कैसे होगा, पर आज डॉक्टर परेश नागर ने हम लोग की सारी शंकाओं को निर्मूल साबित किया। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि शायद मुझे सबसे ज्यादा जो खुश होगा आज के दिन इंसान वो डॉक्टर ब्रिजमोहन होगा। वो है इस समय हॉल में, मैं चाहता था कि वो हॉल में होते, तो उनके लिए भी एक बार मैं आप लोगों से कहता है कि आप सब लोग एक स्टैंडिंग ओवेशन दें उनकी दूरदर्शिता के लिए कि उन्होंने ये सोचा कि जब हम लोग यहाँ पे आए तो हमने देखा कि यहाँ पे इतना बढ़िया प्लेस है। आज तक यहाँ पे किसी ने कॉन्फ्रेंस कराने का सोचा ही नहीं। इतनी ऐसी कॉन्फ्रेंस मैंने आज से पहले नहीं देखी कि जिसमें एक भी कुर्सी खाली ना हो। स्टैंडिंग ओवेशन फॉर डॉक्टर नागराज एंड डॉक्टर जीपी राय, काइंडली स्टैंड अप एंड गिव अब मैं फिर उस शख्स को आवाज देता हूँ जिसे मैंने सुबह आवाज दी थी, उनका नाम भी लिया था मैंने, इस तरह गलती नहीं करूंगा। सिर्फ 2 लाइनों से आपका स्वागत करूंगा, आप आए और बोले कि मैंने तुम्हें आवाज दी है बड़े नाज के साथ, मैंने तुम्हें आवाज दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज मिला दो मेरी आवाज के साथ। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य श्रद्धेय डॉक्टर कुशवाहा, कुशीनगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पांडे, हमारे सचिव डॉक्टर माहेश्वरी, हमारे बड़े प्रिय मित्र बगल में बैठे हुए हैं, जैसे मैं भोजपुरी में बात करता हूँ, डॉक्टर राय, और हर क्षण इस समारोह को आयोजित करने में जो प्रतिक्षण जीते रहे, बड़े प्रसन्न, बड़े प्रबोधित पिछले 2 वर्षों से 1 वर्षों से एक क्षण भी इन्होंने अपना खोया नहीं और त्रासदी की अवस्था में भी हंसते रहे। ऐसे निरंतर हंसने वाले डॉक्टर परेश नागर,
मधुमेह जो रोग है ये अनुराग की प्रवृत्ति है। आप भगवान कृष्ण को याद करें और उसी के स्थान पे गणेश नागरथ को रखें। बल्लभाचार्य जी का एक श्लोक है, काशी में कहा जाता है, अधरम मधुरम, भगवान के अधर बड़े मीठे हैं, इनके अधर को देख लीजिए। नयनम मधुरम, बड़ी मीठी आंखें हैं। वचनम मधुरम, हसितम मधुरम, चरितम मधुरम, रचितम मधुरम, मधुराधिपते रचनम मधुरम। ये समस्त सृष्टि इस अनुराग, इस प्रतीक का प्रेम है, ऐसा भगवान कृष्ण के बारे में उदाहरण है। और अनंत त्रासदी की स्थिति में जो व्यक्ति हंसता है, पिछले 2 घंटे से हम लोग मानसिक त्रासदी झेल रहे थे, किसी की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके आने की जब खबर पहुंचे, अभी आए नहीं, उनके खुशबू से सारा घर महके, और शाम महके तेरे तसव्वुर से, अभी भी नहीं है, प्रतीक्षा कर रहे हैं, अभी खबर आई और घर में महक आ गई, शाम हो गई फिर भी नहीं आए, शाम महके तेरे तसव्वुर से, और शाम के बाद फिर शहर में दूसरा दिन का सवेरा हो गया, फिर भी नहीं है। यह जो प्रतीक्षा है, निरंतर प्रतीक्षा, यह व्यथा भी है, यह सुख भी है, यह कृतित्व के मार्ग को प्रशस्त करती है, और इस अवधारणा को व्यक्ति क्षण जीता हो वो ना करती है। इसलिए हमने इसको कहा कि भगवान बुद्ध भी, हम लोग उन्हें भगवान मानते हैं, परंपरा वाले लोग उन्हें भगवान का बौद्धा बता रहे, संकल्प लेते हो तो बौद्धा बता रहे कहते हैं। चित्त वृत्ति निरोध की बात करते हैं, वृत्ति पे निरोध हो, चित्त पे निरोध हो। वृत्ति पे तो निरोध हो गया, यहाँ बैठ गए, इतने लोगों को व्यवस्थित कर लिया, लेकिन ये चित्त का निरोध नहीं होता है, जिसमें मनुष्य क्षण लगा रहता है, अभी फिर न कोई आ जाए, कहीं से कोई खबर ना आए। और इसी का मार्ग है मोक्ष, निर्वाण। अनंत दुख सहते हुए बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया, लेकिन मृत्यु कैसे हुई? मशरूम खा के मर गए बेचारे। तो ये भौतिकता जो जीवन की है, जो जिसमें इतना लालित है, इतना माधुर्य है, इतनी आकांक्षाएं हैं, इतनी अपेक्षाएं हैं, इसकी परिणति बड़ी खराब होती है। आप प्रशासन पे हो, बड़े धन में हो, बड़ी प्रतिष्ठा की आकांक्षा हो, बड़े पुरस्कारों के लिए विचरण करते हो, कभी कभी मन में लगे कि बड़ा ज्ञान, हमें कहा जाए कि बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, इसकी भी आकांक्षा हो, इस सब की परिणति बड़े दुख की है। और इसलिए इससे मोक्ष का एक ही मार्ग है, और वह मार्ग है व्यक्ति के कम से कम थोड़े जो निरंतर उसका समय बचा हुआ है, उसको बड़े यत्न के साथ, आपने देखा बड़े यत्न से दीपक जलता है। मालवीय जी महाराज हमारे यहाँ स्त्रियों का बड़ा आदर करते थे, और एक श्लोक अपने भाषण को कहते थे, सत्याधारेश, ये जो आधार है दीपक का, ये सत्य है, इसमें आप आकार की मात्रा लगा दी, पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। तपश्चैलम, ये जो तेल है ये बड़ी तपस्या का तेल है, और तपस्या जब लगी तो ये जो विशेषण है ये भी स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो गया। दीपवर्ती क्षमा धृति, दीपा स्त्रीलिंग, क्षमा स्त्रीलिंग, वर्तिका स्त्रीलिंग, धृति स्त्रीलिंग। देखिए महाराज की कल्पना देखिए, अंधकारिश प्रवेशो च दीपो यत्ने धारिता। जब आप बड़े दुख में हो, बड़े अंधकार में हो, बड़े यत्न से दीपक को पकड़ के चले, यही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। मधुमेह भी ऐसे ही कष्ट साध्य बीमारी है, और बड़े प्रारंभ में अगर प्रयास करें तो जीवन को बड़े सुखमय बनाते हुए भगवान कृष्ण की तरह मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, दुख के साथ नहीं। कृष्ण ने कर्म किया, भोग किया, त्याग दिया, और फिर मोक्ष को प्राप्त हुआ। ये दर्शन है, भारतीय दर्शन है। हम लोग मधुमेह में यही प्रयास कर रहे हैं। जब हमारी अवधारणा थी कि हमारी RSSDI बने कि मूलतः शोध की शाखा है, और ये डॉक्टर आहूजा हमारे बड़े श्रद्धेय गुरु थे ऑलिम्पिक इंस्टीट्यूट में, कि उनकी अवधारणा थी, उन्होंने इसका 6-7 साथ मिलकर क्या से कम 50 वर्ष पूर्व बनाई थी। और आज इस देश में कम से कम हमारे पास इसके 7-8 हजार सदस्य हैं। कारण ये है कि इस भोग की संस्कृति में अब हमें ये रोग ऐसी प्राप्ति हुई जिससे मुक्ति नहीं मिल पा रही है।
एक बड़ा भारी उद्देश्य इस सोसाइटी का है, वो ये है कि हम जनसाधारण तक इसको ले जाएं। और कुशीनगर इसलिए आयोजित किया गया और हम सचमुच आभारी हैं बहुत हृदय से डॉक्टर नागरथ के। ऐसे क्षेत्र में जाए जहाँ इस तरह के समारोह कभी न हुए हो, जन चेतना हो, लोग समझें, जन जन में इसका प्रचार हो, प्रसार हो कि इस रोग से मुक्ति पाई जा सकती है। यही एक ऐसा रोग है जो कि जीवन शैली में परिवर्तन लाने के बाद पूर्णतया हम इससे प्राप्त कर सकते हैं मुक्ति। 100 वर्षों तक जिए, जीवे में श्रद्धा शतम, प्रभाव श्रद्धा शतम, शतम दीना श्याम शरद, अधीन होकर के ना जीवे, भूयंच शतम शता। और ये 100 वर्ष जीने की कल्पना जो हमारे यहाँ है वो आहार से, योग से, विचार से, तपस्या से सबको नियंत्रित करके जीवन जीने की है। इस आयोजन के समारोह में सब लोगों ने बड़े अथक परिश्रम किए हैं। लोगों ने पूछा आखिर समारोह की आवश्यकता क्या है? दिन भर कॉन्फ्रेंस हुई, फिर आप उद्घाटन किस चीज का करा रहे हैं? ये हमारा एक सामाजिक कार्य है। हम सब एक साथ मिलकर के बैठते हैं और ये अनुभव करते हैं कि किसने किसके लिए कितना श्रम किया। और जैसे आपने देखा, खड़े होकर के सब लोगों ने तालियां बजाई, ये हमारे हृदय की अनुभूति थी। यह किसी एकेडमिक मीटिंग में ऐसा नहीं कर सकते थे और इसलिए यह समारोह की सार्थकता है। एक बार पुनः डॉक्टर नागरथ को, डॉक्टर जीपी राय को, डॉक्टर ब्रजमोहन को और सारे आयोजन समिति के सदस्यों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हमें यहाँ आने का उन्होंने मौका दिया और हम सब उनके साथ मिलकर के प्रसन्नता से इस समारोह में कार्यक्रम को हमने रूप दिया और भविष्य में हम ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे जिसमें कि जन साधारण, यही एक ऐसी संस्था है जिसमें चिकित्सक ही नहीं, नर्स, डाइटिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, पैरामेडिक्स, ये सारे लोग इसके सदस्य हो सकते हैं और उसी अधिकार के साथ सदस्य हो सकते हैं जैसा एक चिकित्सक। ऐसा समन्वयवादी दृष्टि इसी संस्था के पास है, ऐसी ही व्यवस्था के पास है और इसलिए संस्था का विकास हो, हम सभी ये कामना है। धन्यवाद। एक शेर में शायद जीएम साहब को सुनाता वो नहीं है तो इसलिए सुना देता हूँ कि उन्हें हम याद आते हैं फकत फुर्सत के लम्हों में, उन्हें हम याद आते हैं फकत फुर्सत के लम्हों में, मगर ये बात भी सच है कि उन्हें फुर्सत नहीं मिलती। डॉक्टर अनिल महेश्वरी ने कहा कि नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, डॉक्टर सोनी कराएंगे। इस कॉन्फ्रेंस को हमने देख लिया, हम समझ सकते हैं कि वो कॉन्फ्रेंस क्या होगी। अगर यहाँ ये नज़ारा है तो वहाँ क्या नज़ारा होगा ये हम समझ सकते हैं। 2 लाइनें हैं इस पे, देखभाल की जिस दुल्हन की बहक उठा है हर बाराती, देखभाल की जिस दुल्हन की बहक उठा है हर बाराती, जिसके द्वार उठेगा घूंघट उस पर जाने क्या बीतेगी। आयोजकों ने यहाँ पर यूपीकॉन आयोजित करने का मन बनाया और इसे सफलता से आयोजित भी कर रहे हैं। डायबिटीज की समस्या अगर पिछले 2 दशकों में देखा जाए तो लीव्स एंड बाउंड की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, एक एपिडेमिक फॉर्म में है और शायद चाइना के बाद हम लोग देश में सबसे ज़्यादा डायबिटिक्स है। इन सारे डायबिटिक्स में जो ट्रीटमेंट दिए जाते हैं ज़्यादातर 80% केसेस जनरल फिजिशियंस या जनरल ड्यूटी मेडिकल अफसर जो होते हैं जिनके पास विशेषज्ञता नहीं है वही करते हैं। इस तरह के कॉन्फ्रेंसेज आयोजित होने से जो डॉक्टर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया या जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस में, निश्चित रूप से उनका ज्ञानवर्धन होगा, नई नई चीज़ें उनको मालूम होगी और कैसे हम लोग डायबिटीज या उसके कॉम्प्लिकेशन से दूर रह सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। ये बहुत हर्ष का विषय है कि बहुत इंथुजियास्टिक पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर उपस्थित समस्त डेलीगेट्स और स्पीकर्स उनका समय बहुत अच्छी तरीके से बीतेगा। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। मैं डॉक्टर अनुज महेश्वरी से कहूँगा कि एक बुके देकर हमारे एसपी साहब का स्वागत करें।
अब मैं आगे करूंगा प्रोफेसर त्रिपाठी जी से कि वो हमारे डीएम साहब का लेके स्वागत करें। अब मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर शमसुल को कि वो अपने संविधान का विमोचन कराएं। डॉक्टर शमशेर अली, सॉरी। धन्यवाद सर। डीएम और एसपी साहब कह रहे हैं मुझे कि मैं आते ही काम पे लगा दिया। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे एसपी साहब श्री ब्रजेश जी आईपीएस कि वो आकर 2 शब्द कहें। और उनके स्वागत में कहूंगा कि अब तो हर त्योहार का हमको पता चलता है तब, अब तो हर त्योहार का हमको पता चलता है तब जब पुलिस की गश्त नजर आती है शहर में। आदरणीय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, दूर दराज से यहाँ पधारे हुए देश के सबसे कीमती विद्वतगण, देश के स्वास्थ्य को ठीक रखने वाले, देश के दिल की धड़कनों को दुरुस्त रखने वाले, देश की रोशनी को सही दिशा में पहुंचाने वाले, मैं कितने शब्दों से, कितनी टाइटल्स से, कितने विशेषणों से नवाजूं। आप सबकी प्रतिभा इतनी बड़ी है कि मेरे पास जो उपलब्ध शब्द हैं वो बहुत छोटे हैं। आपके व्यक्तित्व के बारे में, आप सबकी शख्सियत के बारे में मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वैसे पुलिस वाले वैसे भी बहुत कमजोर होते हैं भाषण देने में, बड़ा मुश्किल काम दिया है। वैसे आज के सेमिनार में बहुत देर से हम लोग पहुंचे हैं। कुशीनगर जनपद के लिए ये बहुत फख्र की बात है कि एक इतना बड़ा आयोजन आप भगवान बुद्ध की धरती पर कर रहे हैं, जिन्होंने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया, एकता का, प्रेम का, सौहार्द का पाठ पढ़ाया। मैं भगवान की धरती पे, लॉर्ड की इस पवित्र भूमि पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से पहले मुझे गुस्ताखी करने का अवसर दे दिया गया। मैं पहले तो माफी चाहूंगा, वो हम लोग के गार्जियन हैं, पहले उनसे हम लोगों को आशीर्वाद देना चाहिए था, उनकी बातें सुननी चाहिए थी। मैं भी बहुत सीखता हूँ उनके बहुत करीब रह करके। मैं मुंह पे उनकी प्रशंसा नहीं करना चाहता, लेकिन उनके बड़े व्यक्तित्व से मैंने बहुत कुछ चुराया है। तो मैं उन्हीं के समक्ष उनसे आज्ञा लेकर के जनपदीय पुलिस प्रशासन की तरफ से और संपूर्ण जनपद के प्रशासनिक तंत्र की तरफ से सबसे पहले आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं, बार-बार अभिनंदन करता हूं। अभी हम लोग रास्ते में बात कर रहे थे कि ये डायबिटीज से रिलेटेड जो गोष्ठी है, जो सेमिनार है, जो कॉन्फ्रेंस है, उसको सेंटर्ड है उस पर एक कॉम्प्लेक्स डिजीज जिस पर आज दिन भर परिचर्चा आपने की होगी, जिस पर दिन भर मंथन हुआ होगा। ये निश्चित रूप से दुनिया भर के, देश भर के वैज्ञानिकों में, डॉक्टर्स में शोध का विषय है। उसके बारे में कोई नई चीज मैं बताने की कुव्वत नहीं रखता हूं, लेकिन मैं जरूर आपसे आग्रह करूंगा कि जहां जिस क्षेत्र में हैं
जिस जनपद में हैं, प्रदेश के जिस हिस्से में आप आवासित हैं, लोगों की प्रॉपर काउंसलिंग हो। जो ये अनियमित दिनचर्या हो रही है, खासकर पुलिस वालों की हो रहती है, जरा उनका मार्गदर्शन करने की कृपा करें, उनको बताएं कि सारी चीजें आपकी रेगुलर जो जीवन शैली है उसकी उपज है। मैं नहीं जानता मैं कितना सही आपसे बोल रहा हूं या मेरी बात कितनी सही है, लेकिन शायद आप आज की आपकी चर्चा का लबुलबाब भी यही रहा होगा कि हमारी अनियमित जीवन शैली हमें इस दिशा में ढकेल रही है। एक कॉम्प्लेक्स डिजीज के बारे में जो एडवांस साइंटिफिक रिसर्चर्स हैं, जो कि इत्तेफाक से मेरा बेटा भी मॉडल मेडिकल स्कूल में है, तो जो विश्व में शोध का सोपान है वो इसी दिशा में है कि कोई जीन ऐसी इन्वेंट कर ली जाए कि हम उसको कंट्रोल कर सके इनिशियल लेवल पे ही। जेनेटिकली हम कैसे उसको विनोवर कर सकते हैं, यह आज की सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन इस धरती की सबसे बड़ी चुनौती है जहां पे आप बता रहे हैं जेई, सैकड़ों लोग प्रत्येक वर्ष, जैसा कि डीएम साहब की भी स्वाभाविक चिंता है, वो गार्जियन है, रास्ते में भी उन्होंने अपनी चिंता से मुझको अवगत कराया। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप में बहुत सारे सक्षम और समर्थ लोग बैठे हैं, आप अगली बार जब पधारें तो यह उद्देश्य केंद्रित हो एंसेफ्लाइटिस के संबंध में लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए, लोगों को नई दिशा देने के लिए। मैं आपके और कलेक्टर साहब के बीच में बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, ये गुस्ताखी में कर ही नहीं सकता। मैं फिर से आपका बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं बहुत देर से आया हूँ, गुस्ताख हूँ, आपसे माफी चाहता हूँ। फिर से आपका बहुत आप आए हैं इस महफिल में सही वक्त पर, आप आए हैं इस महफिल में सही वक्त पर। हम चरागों का बदल ढूंढ रहे थे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा वरेश से कि भाई मोमेंटो देकर सबके साथ तो दें। हमारे डीएम साहब यहाँ बैठे हैं, मुझे शायद पहचानेंगे नहीं, 7 साल बाद मैं देख रहा हूँ। मैं मुरादाबाद में स्टडी पोस्टेड थे आप सर, तब 1-2 बार आपसे मेरे घर को मुलाकात हुई है आपसे, तो मैं चाहता हूँ सर आप आगे कुछ करते हैं। सबसे पहले तो क्षमा चाहूँगा कि हम लोग थोड़ा लेट आए हैं। कुछ परिस्थिति ऐसी थी कि हम लोग कमिश्नर साहब की बैठक में हम लोग जाते हुए भी मीटिंग में हम लोग आपके हम समय से नहीं आ रहे। अभी डॉक्टर कुशवाहा जी के साथ बैठ के बात कर रहे थे। एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इंक्लूडिंग प्रकाश साहब, कभी अगर आप लोग हमारे साथ पूरा दिन बिताए तो जो सबसे स्ट्रेसफुल टाइम मैं समझता हूँ कि डॉक्टर के दिनचर्या में होता है, वो होता है शायद ओपीडी में जितना स्ट्रेस होता है आपके पास। एंड आपने बहुत एम्स गए होंगे, तो एम्स में आपको लगता है कि पूरा एक मॉब है, एक अकेले डॉक्टर के पीछे एक उम्मीद के साथ आता है कि ये डॉक्टर जो है मेरे इनक्योरेबल डिजीज को दूर कर पाएंगे। ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन में हम लोग होते हैं। आप लोग फिजिकल बीमारियां दूर करते हैं, हम लोग सोशल बीमारियां दूर करते हैं, और बाय एंड लार्ज जो बेनिफिशियरी होता है वो गरीब आदमी होता है बाय एंड लार्ज। और स्पेशली पटरौना जैसे जगह में या पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो सोशल इंडेक्सेस इतने खराब हैं कि जो भी आदमी हमारे पास आता है या आपके पास आता है वो 80-90% बिलो पॉवर्टी लाइन का आदमी होता है। हम लोग के पास जो केसेस आते हैं, मैं आपको सिर्फ रेफरेंस देना चाहूँगा, जो हम लोग के पास मेडिकल केसेस आते हैं, आदमी आता है हाथ पैर में इंजरी